ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آگاہ کر رہے تھے آپ۔ ناظرین، مہنگائی اور بے روزگاری میں پسی عوام نے ایک بار پھر حکومت سے پیٹرول بم گرانے کے حوالے سے احتجاج کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے جہانیہ کے شہری بھی بلبلا اٹھے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید بات ہم کرتے ہیں چودھری عمران علی سے۔ عمران، بتائے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ اس وقت موجود ہوں جہانیہ کے پیٹرول پمپ پر، جہاں حکومت کی طرف سے مہنگائی کی ماری عوام کو ایک اور جھٹکا لگا دیا گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، جس سے شہری لوگوں کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں پیٹرول اور مہنگا کرنا غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ پیٹرول سستا جب ہوتا ہے تو بسوں کے کرائے اور دیگر جو اشیاء ہیں وہ سستی نہیں ہوتی۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو باقی اشیاء میں بھی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے۔ جی، جیسا کہ شہری کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن جب حکومت پیٹرول سستا کرتی ہے تو اس سے کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم کیا جائے۔ ناظرین، اسموگ جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بن چکا ہے۔ پاک پتن میں موسم تبدیل ہوتے ہی صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی اسموگ چھا جاتی ہے، جس سے شہری سانس اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اس حوالے سے کیا حفاظتی تدابیر بتا رہے ہیں، راؤ رمضان رپورٹ کریں گے۔ پاک پتن اور گرد و نواح میں صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی ہلکی اسموگ چھا جاتی ہے۔ فضا آلودہ ہوئی تو اسکول جانے والے بچے سانس اور آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہونے لگے۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر غلام صابر نے ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ اسموگ جو ہے ایک ماحولیاتی آلودگی ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ میری تمام شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی صبح کے ٹائم پہ بغیر ماسک کے باہر نہ نکالیں تاکہ سانس کی بیماریوں سے بچاؤ ہو سکے۔ فضائی آلودگی سے محفوظ رہنے کے لیے شہری اسموگ کی حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ اچانک موسم کے چینج ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ اسموگ ہو گئی ہے اور اس اسموگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ میں صبح کالج جاتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کرتا ہوں۔ تمام شہریوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی ماسک کا استعمال کریں تاکہ وہ سانس کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ فصلوں کی باقیادت، فیکٹریوں اور بھٹوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی اور اسموگ میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے شہری آنکھ اور سانس کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رو رمضان اجاز، NTN نیوز پاک۔ دیپال پور سے، جہاں پر اسموگ کی وجہ سے شہریوں کا صبح اور شام کے وقت سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز ایسے موسم میں کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے تجاویز شامل کرتے ہیں۔ محمد احمد بھٹی ہمیں بتائیں گے۔ دیپال پور تحصیل کو انڈین سرحد پر واقع ہونے کے باعث ان دنوں اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ فضائی آلودگی کو اسموگ کہا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ، فیکٹریوں، کارخانوں، صنعتوں اور فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا دھواں دھند میں شامل ہو کر اسموگ کا سبب بنتا ہے، جس کے طبی ماہرین کے مطابق انسانی صحت پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسموگ جو ہے اس سے آنکھوں میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، پانی آنا، چپکنا، جڑنا، سرخ ہونا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور اس سے کیسے بچا جائے؟ ماسک پہنیں۔ اگر سانس کی دشواری ہے، جس کو سانس کے مسائل ہیں، اگر سانس کی دشواری بڑھ گئی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو زہریلا دھواں ہمارے پھیپھڑوں اور آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے موسم میں شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ آنکھوں پر چشمہ، ناک اور منہ پر ماسک لگائیں۔ ٹھنڈے مشروبات اور پانی سے اجتناب کریں۔ صبح اور شام کے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاتھ منہ کو واش کرتے رہیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراً کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، NTN نیوز، دیپال پور۔ دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سادھو فقیر بابا بھومن شاہ کے نام سے منسوب عمارتیں حکومت کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں، اور اس تاریخی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنا کر کرتارپور کی طرح ایک سیاحتی مقام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دیپال پور میں بھومن شاہ کے نام سے منسوب فن تعمیر کی شاہکار عمارتیں حکومت پنجاب کی عدم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے اس تاریخی ورثہ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بناتے ہوئے کرتارپور کی طرح سیاحتی مقام بنایا جائے۔
साधु फकीर भूमिया 337 साल कबल नवाही गांव बहलोलपुर के हिंदू कंबो खानदान में 5 पीरों की दुआ और अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। ਸਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪੁਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ इंडिया जो करामात जाहिर होने पर आपको बाबा भूमन शाह पुकारा जाने लगा। आपने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के ख्वाब में मिलने वाले हुक्म पर लंगर का सिलसिला कायम किया था। वो सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं में यकसा मकबूल थे। उस वक़्त इलाका के बड़े जागीरदार लखा वट्टू को कैद हो गई थी। इसकी माँ ने आपसे दुआ कराई। रिहाई मिलने पर जागीरदार की माँ ने गाँव कुतुब कोट का 5500 रकबा आपको दान कर दिया, जहां पर डेरा भूमन शाह तमीर कराया गया था। 1762 में आप 75 साल की उम्र में वफात पा गए। 1947 में आपका खानदान इंडिया के शहर सरसा में जाकर आबाद हो गया, जहां हर साल सर्दियों में आपका बहुत बड़ा मेला लगता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज, दीपालपुर। 40 से 50 साल कबल बनाया जाने वाला BHU बकरावा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तहसील कोट चट्ठा के इलाके बखरवा में 25,000 आबादी पर मुश्तमिल इकलौता BHU अस्पताल बखरवा तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जावेद जतोई मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के दावे जो है ना धरे के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कोटचट्टा के बेसिक हेल्थ यूनिट में। यहाँ पर जो इस अस्पताल की 4 दीवारी है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। अगर इमारत की बात की जाए वो भी खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है। मजीद अस्पताल के हवाले से इनसे जानते हैं। जी सर, बताएगा इस फकुदान के हवाले से क्या? जी सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें टाइम दिया। ये BHU बेसिक हेल्थ यूनिट बखेरवा है। अगर इनमें सहूलियात की बात की जाए तो तकरीबन काफ़ी फकुदान है। आप देख सकते हैं ये जो है ना 4 दीवारी इसमें नहीं है, और इसकी जो कमरे हैं ना, अगर कमरों की बात की जाए वो भी मुकम्मल तौर पर इंतहाई खस्ता हालत करे क्योंकि किसी भी वक्त ये गिर सकते हैं। हमारी आला हकाम से यही अपील है कि इस बिल्डिंग को नया बनाया जाए और ये इनकी ये 4 दीवारी है ना उनको भी नया मुकम्मल किया जाए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ अहले इलाका मौजूद थे, उनका भी यही कहना है आज से 40-50 साल पहले बनने वाला ये बेसिक हेल्थ यूनिट जो जिसमें ना मुकम्मल तौर पर फुकदान है, इसकी जो है ना 4 दीवारी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है और जो है ना कमरे वो भी खस्ता हाली का शिकार है। हमारी जो है ना अरबाब इख्तियार से यही हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इसकी जो है ना 4 दीवारी दिलवाई जाए और जो है ना कमरे को या मुरम्मत कराई जाए या नए बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आगाह करे थे आप। अहमदपुर सियाल का रुख करते हैं, जहां पर मोहल्ला सईदाबाद की शारा आम पर लकड़ी के सहारे पर खड़ा बिजली का खंबा आवाम के लिए वबाले जान बन गया। लकड़ी को भी अब दीमक चाट रही है और ये खंबा किसी भी वक्त गिरकर किसी हादसे का बाइस बन सकता है। मजीद हम जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा तनवीर हुसैन से। तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल के मोहल्ला सईदाबाद में शाहराए आम पर गिरते हुए खंबे को लकड़ी का सहारा दिया गया है, जिसकी वजह से ये खंबा जो है किसी भी वक्त ज़मीन बोस होकर बहुत बड़े नुकसान का पेशखमा साबित हो सकता है। इस हवाले से मेरे साथ एक मकामी शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा, ये कितने अरसे से है और इसका क्या नुकसान हो सकता है? 2-2.5-3 साल से ये ऐसे ही है। हमने फ्रेस्को वालों को बार बार कहा, लेकिन कोई सुन भी नहीं रहा। ये देखो, ये इसको दीमक चाट रही है और ये खंबा सिर्फ इसे लकड़ी के सहारे खड़ा है। किसी वक्त कोई नुकसान हो सकता है। ट्रैफिक यहाँ वहाँ है, वो कोई हमारे बच्चे हैं इधर, किसी बच्चे पर गिर सकता है, बहुत बड़ी बात हादसे का शिकार हो सकता है ये। तो आप क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करेंगे, फ्रेस्को वाले को हम बस करते हैं कि ये इनको ठीक करें, सही करें। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी एक मकामी शहरी की, तो उन्होंने फेस्को वापडा अहमदपुर सियाल से यही मुतालबा किया है कि तकरीबन 2-3 साल से ये लकड़ी के सहारे पर जो खड़ा खंबा है इसका मुस्तकिल तौर पर हल निकाला जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी शुक्रिया, आगाह कर रहे थे आप। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल का तबादला हो गया है और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी छोड़ दिया है। उनको जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू D ऑफिस फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। उनके एजाज़ में रेवेन्यू स्टाफ की जानिब से अलविदाई तकरीब का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद अहवाल बताएंगे मोहम्मद अफजल। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। इनको जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू DC ऑफिस फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। इनके एजाज़ में आई रेवेन्यू स्टाफ की तरफ से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, भवाना में आप कितना अरसा रहे हैं और यहाँ की आवाम की आपने कैसे खिदमत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने एज ए असिस्टेंट कमिश्नर बना 1.5 साल का अरसा गुजारा। जब मैं यहाँ पे आया तो वहाँ पे मसाइल थे, रिकवरी के भी मसाइल थे, म्यूनसिपल कमेटी के मसाइल थे, शहर की सड़क टूटी हुई थी। वो 1.5 साल में हमने इंशाल्लाह उस सड़क को भी मुकम्मल किया। वहाँ पे खूबसूरती के लिए दरख्त भी लगाए, शहर में लाइटें लगाई गई। वो तमाम मसाइल तकरीबन हमारे हल हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे और छोटे छोटे मसाइल थे, वो भी हमने हल किए। हमारे रेवेन्यू के मसाइल थे, रिकवरी के, वो भी इंशाल्लाह हमने तकरीबन वो हम हल कर चुके हैं, हल होने के करीब हैं जो छोटे मोटे हैं। इस तमाम मामलात में मेरा म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने भी साथ दिया। ख़ास और मेरा जो अमला था वो क्लास 4 से लेके हेड क्लर्क तक और हमारे पटवारी से लेके तहसीलदार तक सारों ने ही मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया और मेरा साथ दिया। जहाँ पे मैं उनको कहा वो गए। ख़ास और इलेक्शन के दिन थे हमारे, वो भी बड़े टफ दिन थे, हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे गुजारे। मेरी दुआ है कि ये शहर मज़ीद तरक्की करे, यहाँ के लोग जो है खुशहाल हों और खुशखुरम रहें। शहरियों ने भी, इसके देहाती हों जो शहर के, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर बाना तारिक महमूद गोंदल की बात सुनी। इनका कहना है कि अमला ने हमारे साथ बहुत तावन किया, मैंने बाना की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया, बाना की आवाम की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला। जी, शामिल करते हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए सस्ता मॉडल रेडी बाजार लगा दिया गया, जहां अशिया खुरनोश के 20 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मॉडल बाजार का अहवाल हम जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा हसन शेख से। जी हसन। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की खुसूसी हदायत पर तहसील शकरगर में भी मॉडल रेडी बाजार लगाया गया है। मॉडल रेडी बाजार लगाने का मकसद शहर भर से रेडी बनों को ख़त्म करना है और इन्हें एक छत के नीचे जमा करना है, ताकि शहर भर से तजावुज़ात का खात्मा भी हो सके और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो। तो इस सिलसिले में शकरगर में भी एक मॉडल बाजार लगाया गया है, जहाँ पर जो 20 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं वो सज चुके हैं। तो इस ज़मन में जब हमारी मॉडल बाजार के दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि ये पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इकदाम सामने आया है जहाँ पर जो रेडी बान है वो भी एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकते हैं। तो इसी तरह जब हमारी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए शहरियों से बात हुई तो वो हुकूमत से शिकवा करना है। उनका कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी, शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी स्मोक का राज है, हद निगाह इंतहाई कम है। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अक्सर भट्टे बंद हैं जो स्मोक का बाइस बन रहे हैं और शहरियों का कहना है कि ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया फौरी तौर पर जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टों को चलवाए ताकि स्मोक में कमी आ सके। हमारे नुमाइंदा रफ़ीक अहमद से हम मज़ीद जानते हैं। जी रफ़ीक। बिल्कुल, पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी स्मोक के डेरे हैं। हर जगह सुबह और शाम के औकात में स्मोक का राज छा जाता है। इस हवाले से जो शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनमें गला और आँख और चेस्ट का इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से जो है THQ हस्पताल में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर माहिरीन का कहना यही है कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएँ और जो गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें, अपने घरों में रहें, ठंडे मशरूबात से भी परहेज़ करें, गर्म मशरूबात का जो है इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, ड्राइवर हजरात को स्मोक की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक माहिरीन का कहना यही है कि फोग लाइट का इस्तेमाल करें, घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब भट्टा खश्त की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली की सबब जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर जो भट्टे मुंतकिल हुए थे, जिगजैग टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया गया है, जिसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं स्मोक का सबब बन रहा है। शहरियों ने बाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टों को दोबारा चलाया जाए ताकि स्मोक के अदराक को कम किया जा सके। जी, शुक्रिया आगाह करने के लिए। वापडा की निजकारी के खिलाफ हाफजाबाद वापडा मुलाजमीन ने एहतजाज किया और दफ्तर को तालाबंदी कर दी और धरना दिया। वापडा मुलाजमीन को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मजीद जानते अपने नुमाइंदा मोहम्मद अबू बकर मुगल से। अबू बकर, बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, वापडा मुलाजमीन जो है हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ और वापडा निजकारी के खिलाफ वो कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं और इस वक्त अपने ऑफिस में उन्होंने धरना दिया हुआ है। मेरे साथ डिवीजन सेक्रेटरी रज़ाक अवान साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके क्या क्या मुतालबात हैं और ये कब तक एहतजाज जारी रखेंगे। जी आज जरूर जी, हमने अपने इंतजामिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है। हमने कलम छोड़ हड़ताल पे और प्लास छोड़ हड़ताल पे हैं। हम किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे। हमारा जो मुतालबात है जिनमें चंद एक का मैं जिक्र करूंगा। वापडा अस्पताल जो है उसे
बंद कर दिया गया है। हमारे जो रेगुलर यानी कि जो रेगुलर मुलाजमीन को नहीं किया जा रहा, हमारी मोटरसाइकिलें हैं वो इंतवा का शिकार है, और इसके अलावा अफसरान को 2-2 दफ़ा गाड़ियाँ दे दी गई हैं। हमारे मेडिकल का बहुत पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमारी किसी किस्म की कोई भी यानी कि बात को माना नहीं जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो मटीरियल वगैरह है वो बिल्कुल नाकस किस्म का खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही हम अपना जो एहतजाज का दायरा कार इंशाल्लाह मजीद वसी करेंगे, और अगर आज हमारे मुतालबात को नामंजूर किया गया। जी, सेक्रेटरी अफजाक अवान का कहना था अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करते तो एहतजाज का दायरा कर वसी किया जाएगा। जी शुक्रिया आगाह करने के लिए। रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां पर स्मोक का राज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला है, और इससे धुआं और आबादी में मौजूद राइस फैक्ट्रियां हैं। शहरी स्मोक के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। NTA न्यूज़ के नुमाइंदा वसीम अख्तर से मजीद हम जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरव वाला मेन रोड पर। मैं आपको बताता जाऊँ, स्मोग का जो राज है वो बहावल नगर में बरकरार है। स्मोग ने अपने डेरे जो बहावल नगर में वो जमाना शुरू कर दिए है, और स्मोग के बायस जो है वो जो है शहरी जो है मुतअद्दिद बीमारियों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार जैसी मौलिक बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो दूसरी जानब मैं आपको बताता जाऊँ, शहर में हैवी ट्रैफिक का जो दाखिला वो ममनू करार दिया गया। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक जो है शहर में हैवी ट्रैफिक जो है वो दाखिल नहीं हो सकती। डिप्टी कमिश्नर के आर्डर के मुताबिक जो है, और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो डिप्टी कमिश्नर के आर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरी जानब मैं आपको बताता जाऊँ कि शहर में जो हैवी ट्रैफिक दाखिल होती है उसके धुएं से गर्द और गुबार जो है वो आलूदगी पैदा होती है, जिससे शहरी जो है इंतहाई जो सख्त बीमार हो रहे हैं। और दूसरी जान मैं आपको बताता जाऊं कि शहर में जो है चावल की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं शहर में आलूदगी का बायस बन रहा है। मुतअद्दिद बार शहरियों की जो है निशानदाही, इन फैक्ट्रियों की निशानदाही की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। तो शहरियों का भरपूर मुतालबा है कि इन फैक्ट्रियों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। और दूसरी जानब शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि हैवी ट्रैफिक जो शहर में दाखिल हो रही है, जिसकी बायस शहर में जो आलूदगी पैदा हो रही है, उसको भी फिलफौर रोका जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप आगाह करे थे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।